हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम दोबारा से पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ क्लास में, बैठ जाओ। प्लीज बी सीटेड। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टुडे। आई विल टेल यू what I am going to discuss. So, tribes. So, tribes is what? Tribes is a social category, small group people living together, जिनका this that have distinct culture, distinct language. In constitution, it is used administratively as scheduled tribes in schedule 5 and schedule 6 and under article 366(25). You must remember article 366 section 25 or subsection 25. It is administratively, it is a used as scheduled tribes. So there has been, so census. Why do we do census? Because it is very important for planning. Okay. So it is a classificatory and political category. So the census of India counts the scheduled caste population, level of literacy, then language, religion, and their distribution. So it is the job of the census of India. Okay, so census helps in planning. Government wants to make a policy, and that is, and census of these tribes by census of India provides inputs regarding the level of literacy, the backwardness, the isolation, distribution, their social economic characteristics. I would say that. Then classification of Indian tribes. So how the various linguistic classification can be done? Yes, the various classification of languages in tribes are what? Are Indo-Aryan. Then we have Austroasiatic, we have Dravidian, we have Tibeto-Burman. So various languages. What are the various languages? So Mundas come under
Austroasiatic language. Various South Indian tribes languages come under Dravidian, like Toda, okay, Orwans. Then we have Tibeto-Burman, yes, the people of Lepchas, Botias, Ladakhis, their languages come under Tibeto-Burmese. Then Indo-Aryan, some tribal groups that are living in Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, languages of these tribes are categorized under Indo-Aryan. So some tribals spoke many languages, that is, they are multilingual. Okay, so why do we do linguistic classification? Why do we study the tribes? Because it helps in planning, it helps in policy making, it helps in designing that the tribes has to be educated in their mother tongue, needs for mother tongue education in early childhood, and there is need to include tribal languages in school curriculum, like Naga languages, Garo, Khasi, Bodoland, Indo-Aryan, Dravidian, like Todas, Santhals, Ho. So that is, they are in central and eastern India. Then what is the issues faced by pastoral communities? Migration. They are nomadic. Malnutrition problem, education problem, illiteracy level is high, unemployment level is high. So there is a loss of common grazing lands for the pastoralist community. Okay, they are not often displaced by the various development projects. There is culture loss. So Bakarwals and Gujars, Raikas in Rajasthan. So people, these tribal groups are facing a lot of problems, hell lot of problems. They are not given forest rights, land rights. There is a loss of grazing lands. There is cultural loss. So climate change, when there is no rainfall, it affects their water scarcity. It affects their pastoral.
So there has to be service delivery, health service delivery, education. It should be made mobile, has service delivery, better veterinary knowledge, veterinary knowledge. So if they are facing many problems. Next question is question number 4. What is that? Biogenetic variability of Indian tribes. It has been repeated so many times. So means there are genetic variations. There is a different blood groups are prevailing in them. Different ABO blood group, heptoglobulin, transferrin. There is a variability. PTC testers and non-testers, they are categorized as. So there is genetic variability and is due to isolation and endogamous group. So there is variability is there. So that is the biogenetic variability is first to understand it. You know, they are shaped by many factors: natural selection, isolation. There is a need to understand it. So there is presence of HB level sickle cell trait in them that prevents them from causing of malaria. So northeast groups, there are complex people are living in India. They carry East Asian traits. Munda group carry Austroasiatic traits. South and Southeast Asian admixture. So our tribal is very rich. They have different genetic composition. The Central Indian tribes, there are various races. We have Mongoloid living in South, in Northeast India. We have Dravidian. We have Aryan living in North India. Dravidian in South India. The various racial groups are living in India, and that is called biogenetic variability. And this is due to isolation, genetic variability. You must remember these things, what I am saying. You need to write down in your notebooks with your pen and paper. You know, so it helps to understand the evolutionary pattern, human evolutionary pattern.
So it is important for medical genetics study and to understanding the diversity. So whenever there is research is conducted, it should be conducted within ethics. You know, there is various phenotypic and genotypic variants differences among the tribal population. There is next question is Alvin Gure debate. Of course, there is Alvin Gure debate. Gure said that tribes are backward Hindus. Alvin says that इनको isolation में रखो. घुरे ने कहा कि इनकी इंटीग्रेशन करो, मींस एसिमिलेशन करो, और ताकि इनका जो अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो अपने रिटेन करके रख सकें. एल्विन गुथरी. गुरे. What is Alvin's position? That there we should not interfere much in the tribes. They should be isolated. Gure's position that isolation should not be there. It will prevent their development. They should be integrated with the mainstream society. They are called backward Hindus. So, so we have forest uniformity administrative mechanism will not be successful. That is why Forest Rights Act as well as PISA Act was there for the welfare, social, economic development of the tribal groups, because single law, single act will not be helpful for the entire country, because there is biogenetic variability in the tribes. They have different languages to group. That is where you need to understand of it. Then we have social characteristics. They are egalitarian in nature. So shifting cultivators characteristics means it is called Jhum. It is called I slash and burn. It is called Swiden. It is practiced by many tribal groups. So, what is the characteristics of shifting cultivators? They have low level of literacy. They use pre-agricultural technology, primitive technology. They are endogamous groups. They are egalitarian in nature. ये सॉइल की जब फर्टिलिटी नहीं रहती तो ये नए लैंड पैच को फिर डिस्ट्रॉय करते हैं
और वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यूम या स्वीडन प्रैक्टिस करते हैं. सो सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स हैं. Northeast groups, there are many shifting cultivators. So what has happened? They are economically marginal. They are self-sufficient groups, egalitarian. They work as cooperative unit. और क्या करते हैं? क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? बताएगा कोई मेरे को? बताओ, इतना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, दिमाग में जाने तो चाहिए कुछ. तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कुछ क्यों, सारी बातें जानी चाहिए दिमाग के अंदर. तो ये लोग नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. गवर्नमेंट, they are simple primitive technology, they are making use of it. You know, they have laws, primitive laws, customs, customary laws, and they live with it. There is a big man in there. Village councils are there. Gotul system is present there. In Gonds, the Muria and their Gotul, the Garia, book written by Barry Relvin. So they are practicing shifting cultivators. There is environmental concerns with shifting cultivators because deforestation is detrimental to the environment. They are economically marginalized, low level of literacy. They have primitive political system. They have unwritten laws, customary laws, rituals. Then there are socio-economic marginalization. Yes, land alienation is there. The poverty and indebtedness, culturally discrimination, health and nutrition deficits. They are backward in health terms and they are also backward in nutrition level of the children of tribals is very low. That is why they are nutrition and health deficits. Government needs to employ mobile schools and health for
These tribal groups marginalization is multidimensional. Political discrimination. There is a threat to because it is not imparted. Language is not imparted. Why are you looking at the video? No issue. That you are taking off 25-30 minutes video. You don't be afraid of anything. Speak up, man. One day will come when you will shine like diamond and earn a lot of money. So I am requesting you to study hard, work smarter. So schools are taught Hindi, English, no mother tongue used in schooling, no tribal languages in school curriculum. There was many not tribal languages are endangered. Small Andamanese languages are critically endangered. Santalli is a success story due to script. You need to documentation of the tribal languages and educational policies. So there has to be revitalization of the tribal languages. Languages are इनकी languages को खतरा हो रहा है. Languages लुप्त होने के कगार पे है क्योंकि इनकी languages को schools में नहीं पढ़ाया जाता. मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ाई जाती. ट्राइबल लैंग्वेजेस जो है इनकी वो स्कूल करिकुलम में नहीं ऐड की जाती है. इसकी वजह से ये एंडेंजर्ड में है. इनको बहुत कम लोग हैं जो स्पीक करते हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस. इनका डॉक्यूमेंटेशन करना है गवर्नमेंट ने. इसको लैंग्वेजेस को रिवाइवल करना है. लैंग्वेजेस रिवाइवल की करने की बहुत खास जरूरत है. There is a need to revive such tribal languages. You got my point, I'm saying. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है. तभी आपको पता चलता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो. मैं गेट से अंदर एंटर किया हूँ अभी अभी, तो आप बातें कर रहे हो आपस में. आप बातें नहीं करनी है, आपने अपनी पढ़ाई करनी है. आप रिवीजन करिए जो मैंने कल आपको पढ़ाया था. करिए इसको रिवीजन अच्छे से. अभी मैं आप रिवीजन तो कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी तो पढ़ाने वाला हूँ. आप तो आप सर जनिए, आप डरिए मत. आप पढ़िए, मेहनत करिए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए कि क्या इंडिजिनस पीपल की बात करें तो क्या ट्राइबल्स ऑफ इंडिया जो है इंडिजिनस लोग हैं? यस, दे आर द इंडिजिनस पीपल. तो अब क्या क्या क्राइटेरिया है उनके? एक तो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट रिलीजन है, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम है. सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, दे आर
having relation with their land and they are using the natural resources. Sweden cultivation, Jhum cultivation. Okay, man, just listen. घबराना नहीं. You are sitting in front of 200 people and you must confidence should be high and way of talking should be normal just to build relation with the students first. Hello students, how are you? कैसे हैं आप? हम आगे डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के पीवाई क्यूज को हम डिस्कस करते हैं. तो यूएन कन्वेंशन ने डिफाइन किया इंडिजिनस लोग वो लोग होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर वो रीजन के साथ उनका रिलेशन होता है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है. हमने वेरियस ट्राइबल लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज उनकी होगी, उनका रिलीजन भी डिस्टिंक्ट होगा. वो पूजा करते होंगे, सोल की पूजा करते होंगे. कोई उनके के घर में बीमार होता होगा तो वो ये मान के चलते हैं कि बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी सोल, हमारे एंसेस्टर्स के स्पिरिट नाराज है हमसे. हमसे ये सुपर नेचुरल फोर्सेस है क्या, किसी ने ने कुछ कर दिया है, विच क्राफ्ट की वजह से हुआ है, जो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है. वो ऐसे लॉजिक देते हैं अपने, क्योंकि वहाँ साइंस की उतनी साइंस टेम्परमेंट की कमी है, इसीलिए तो वो रिलीजन को मानते हैं सब कुछ. तो ये इमेजिनरी रियलिटी का चीज है. ये इमेजिनरी रियलिटी, रिलीजन क्या है, दूसरी इमेजिनरी रियलिटी, ये लोगों को यूनाइट भी करती है. ऐसा नहीं कि इसको टोटली छोड़ देना चाहिए, लोगों को यूनाइट करती है. गुड काज के लिए यूनाइट करें, बैड काज के लिए यूनाइट करें तो फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं देश में बड़े ज्यादा, तो इससे देश की खतरा, यूनिटी को खतरा बन जाता है. गॉट माई पॉइंट गाइस? सो सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड मत करिए. हाँ बोल देना मैं जा ही रहा हूँ. डोंट वरी गाइस, जस्ट बी स्मार्ट इनफ. डोंट वरी. तो ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, तो अगर इसको हम इंडिजिनस लोग मानते हैं तो colonial settler indigenous is used widely and South Asian assimilation pattern. अब लिंकेजेस आपने बतानी है कि लैंग्वेज में टेरिटोरियल और ट्राइबल आइडेंटिटी में क्या लिंकेजेस है. तो टेरिटरी में एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, उसी एरिया में उसी लैंग्वेज को बोला जाता है. और ये लैंग्वेजेस ट्राइबल को आइडेंटिफाई करती है और उनकी जो टेरिटरी है ये टेरिटरी भी उनको आइडेंटिफाई करती है, और इसी से रीजनलिज्म की उनमें फीलिंग आती है. तो ट्राइबल्स हैं वो एक लैंग्वेज, उनकी एक यूनिक लैंग्वेज होती है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, और एक टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी होती है, कन्फाइन होते हैं वो उस टेरिटरी में, और उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है. तो ये आपस में
इंटरवोवन है, इंटरवोवन लैंग्वेज, टेरिटरी एंड आइडेंटिटी, ये आपस में इंटरवोवन है। सो लैंग्वेज तो बोलता है कोई ट्राइब तो हम ये बोलते हैं कि हाँ ये इनकी ये टेरिटरी में ये रहते हैं, क्लेम्स भी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जी, हम तो ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज जो है वो टेरिटरी क्लेम्स के लिए हेल्पफुल होती है। सो अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं वो लैंग्वेज का फॉर्म ले लेते हैं, एथनिकसिटी का फॉर्म ले लेते हैं। ओके, जैसे नागा वर्सेस कुकी फ्रिक्शंस जो है उनमें, जैसे कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट्स है, नागा नेशनलिज्म डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो हमें अलग करके रख दीजिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, अरे ये लैंग्वेज है तो हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ये बोडो यो नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आप इसके साथ रिलेट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नागा नेशनलिज्म सेपरेट गोरखालैंड डिमांड करते हैं, नागा ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। तो वो कारण क्या है, वो क्या चीज है, वो लैंग्वेज ही तो है जो इनको यूनाइट करके रखती है, वो आइडेंटिटी ही तो है जो इनको एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने को कहती हैं, और ये आपस में इंटररिलेटेड है, इंटरवोवन है, ट्राइबल आइडेंटिटी इंटरवोवन है। आप समझो इस बात को, डरना नहीं है। क्या क्यों डरना है, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है एंथ्रोपोलॉजी में, मैं 300 बच्चों को पढ़ाता हूँ एक टाइम पे। यस, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप अंडरस्टैंड करोगे चीजों को, क्या है चीजें। पेशेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए गाइस। तो ये है बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या है इसमें, आप देखिए कि बोडो मूवमेंट है, कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट है, गोरखा है ना, नागा नेशनलिज्म है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए बना हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स है, 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये ट्राइब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, हमने ट्राइब को पॉलिसी बनानी है, उनको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, सोशली मार्जिनलाइज्ड है, रिलीजियसली वो प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम है उनका, वो पोट्री भी बनाते हैं, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉलर टूल्स, स्मॉलर स्टोन टूल्स होते हैं, और पॉलिश्ड टूल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए बोडो मूवमेंट है, अब अब बोडो मूवमेंट जो लॉन्च करते हैं नागा, ये अब इनके माइंड में टेरिटोरियल चीजें हैं, लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल है इनकी डिमांड में कि हम तो ये लैंग्वेज बोलते हैं, हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, हमारे कल्चर्स को दबाया जा रहा है। हम बिग मैन में रहते थे, हमारा बिग मैन हुआ करता था, हमारा हमारा
लेपर्ड्स इन चीफ होता था, जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स को दूर करता था, हमारे कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करता था। वो कहीं ना कहीं वो ओवर शेडो हो गई हैं इंस्टीट्यूशंस, जो इनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती थी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होती थी, वो नॉन ट्राइबल्स के इंक्रोच करने से, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने से वो चीजें इनकी डाइल्यूट हो चुकी हैं। इसीलिए तो लैंग्वेज ही इनके सेंटर में है, टेरिटरी ही इनके मूवमेंट के सेंटर में है। चाहे वो कुकी नागा रिवॉल्ट के बारे में आप पढ़िए नेट पे, नागा नागालैंड इंसर्जेंसी को आप देखिए, कुकी मूवमेंट्स को देखिए, तो आप इस तरह से आप अपने आइडियाज को दिमाग से बाहर निकालिए, तो आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनको अंडरस्टैंड करना है, ट्राइबल्स को, एग्जाम्पल्स को समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्या है, अपने डायग्राम्स प्रेजेंट करनी है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है। आप देखिए, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना। लेपर्ड स्किन चीफ बताओ किस ट्राइबल ग्रुप में होता है, न्यूज क्या है, पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटीज है ना। पोलिनेशियन ट्राइबल ग्रुप, पोलिनेशियन आइलैंडर्स है, मेलानेशियन आइलैंडर्स हैं। तो एक पैसिफिक के ईस्ट में है, एक पैसिफिक के वेस्ट में है, और सेंटर में है। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे सोमोन्स हैं, फिजी है, ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, सोलोमोन हैं, ओके। तो इन्यूट्स है, ओके। तो आप देखिए, ये जुलू है, जुलू, इग्बो ट्राइब है, मसाई ट्राइब है, अमेजोनियन ट्राइब्स है, यानोमामा ट्राइब्स हैं। तो कुछ ट्राइब्स जो है वो प्रिमिटिव लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, बोस एंड एरोस का इस्तेमाल करते हैं, कंपोजिट टूल्स करते हैं। अब क्या होता है कंपोजिट टूल्स, इसमें वुडन को और या फिर बॉल के हैंडल को लगाया जाता है, स्टोन के साथ, स्टोन के टूल्स के साथ वो पत्थरों को मारते हैं, हिट करते हैं और फ्लेक्स बनाते हैं, फ्लेक टूल्स वहां से टूट के निकलते हैं। पहले तो बड़े बड़े टूल्स का इस्तेमाल होता था, फिर टूल्स छोटे हो गए, क्योंकि ब्रेन का विकास होता गया, फिजिकली वो कमजोर होता गया जरूर, लेकिन मेंटली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की वजह से उसके ब्रेन जो है वो विकसित हुआ। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स को हम पढ़ते हैं, फीचर्स क्या है ट्राइबल ग्रुप्स के, आप देखिए, स्लैश एंड बर्न ये करते हैं प्रैक्टिस, ओके, ये आपने याद रखना है ना। यहाँ पे आप देखिए, सिक्स शेड्यूल है इनके लिए, सेवन शेड्यूल है इनके लिए, इनकी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, वो बताओ आप। इनके ये जेनेटिक मेकअप इनका अलग है, वो बताओ आप कि कैसे ये बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी इनमें दिखती है, वो आप बताओ। ये बताओ, पेस्टलिस्ट कम्युनिटी है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं, ओके। आप देखिए, सेफलस पॉलिटी है इनमें। अब यहाँ पे विलेज के काउंसिल्स होते हैं, बिग मैन होता है, आपने बताया, चीफ मैन, चीफडम होता है, चीफटियंस होते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पोलिनेशियन मेलानेशियंस के बिग मैन होता है। तो पैपुआ न्यू गिनिया ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ के, आपने याद करने हैं। आप देखते हो कि क्या क्या है इनमें, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं ट्राइबल्स की, इनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट ये कस्टमरी लॉस है, पॉलिटिकल सिस्टम इनका क्या है वो आप बताओ। सिंपल पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रिमिटिव इकोनॉमी है, ये आपने बताना है। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते हैं, ये होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी है, बता दीजिए। किस कोई ड्राविडियन लैंग्वेज ग्रुप्स का लैंग्वेजेस बोलते हैं, कोई जो है जो है वो तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज ग्रुप से कुछ की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कुछ लैंग्वेजेस
जैसे टोडा है, इनकी लैंग्वेजेस है वो द्राविडियन लैंग्वेज से ग्रुप में फॉल करती हैं। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में ये रहते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है। ओके, तो कुछ हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, कुछ पैस्टरलिस्ट्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ रोप मेकिंग करते हैं जैसे बिरहोर्स हैं, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। बहुत सारे आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये सुमेरियन कल्टीवेशन के साथ इनका रिलेशन था, आपने पढ़ना है ये। तो आप देखिए कि किस तरह से ये ये आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। अब ये इनमें इनमें एनिमिस्टिक बिलीव्स होते हैं, ये आपने बताने हैं। ओके, और वांस जो है, और वांस देखिए हिट्रोजिनिटी है, ये आपने बतानी है। फ्यूचर ऑफ हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स, फ्यूचर एंड क्या है ये हंटिंग गैदरिंग ट्राइब। तो सर्वाइवल चैलेंजेस हैं, क्योंकि सर्वाइवल के चैलेंजेस हैं इनके, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। ये कल्चरल लॉस इनमें हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, लिटरेसी लेवल इनमें ऑलरेडी पहले बड़ा ही लो है। तो फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर क्या होगा। अब इनके अगर 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 इनका फ्यूचर तभी, अभी ये सर्वाइवल कर रहे हैं, तो अगर अगर हेल्थ दिया जाए इनको, हेल्थ फैसिलिटी दी जाए इनको, एजुकेशनल फैसिलिटी दी जाए, तो फ्यूचर इनका ब्राइट है, अदरवाइज फ्यूचर इनका डार्क है। ओके, तो आप देखिए कि अब राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हेल्थ सर्विसेज आपको देनी है, इनकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन लैंग्वेजेस मेडिसिनल नॉलेज है इनके पास, है ना, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, इनकी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। इस तरह से हम अपने कल्चर को बचा सकते हैं। इनकी हमें इकोनॉमिक लाइफ को भी इम्प्रूव करना है, वो कैसे करना है, इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देनी है, इनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे इनके एरियाज में, ताकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो स्टार्ट कर सके। इनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, स्कॉलरशिप स्कीम्स देनी पड़ेगी, एक मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल जैसे गवर्नमेंट खोलती है वो इनके लिए कार्य जो है वो करने पड़ेंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनके लिए मोबाइल हेल्थ और स्कूलिंग इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि ये जो नोमैडिक है वो रोम करते रहते हैं, वो लो लिटरेसी लेवल है वो ग्रेजिंग लैंड उनका लॉस हो रहा है ना। उनकी पॉपुलेशन जो है वो बाय डे डिक्रीज कर रही है। तो यही आपने बतानी है, ठीक है। और ट्रेडिशनल विजडम जो है उनका नॉलेज जो है हेल्थ के साथ, अब देखा जाए कि उनके उनके जो है देखा जाए बहुत सारी उनकी जो प्रोजेक्ट्स करे गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा में, है ना। जो मेडिसिनल प्लांट की नॉलेज है, ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज है इनके पास, उसको डॉक्यूमेंट करने की सख्त जरूरत है, सख्त से सख्त जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन करने की सख्त जरूरत है। आपका वोकल आपके बड़े होने चाहिए, क्लास आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हेल्थ का नॉलेज है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। कोई आप मेडिसिन प्लांट्स के नाम इसमें मेंशन कर दीजिए, और कौन से ट्राइब्स जो हैं वो इन एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, और कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए, आप इनमें ये क्या करते हैं, ये रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इनको प्लांट्स की नॉलेज है जो कि ड्रग डिस्कवरी के काम आता है। जैसे इनको नॉलेज है एंटी मलेरियल प्लांट्स कौन से हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट्स कौन सी हैं, इनको हाइजीनिक है ना। तो ये एनालिटिकल पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, है ना। तो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे देखिए, आयुष को
और जो कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस हैं, जो कल्चरली में इनको ये काम करते हैं, दवा दवा दारू जो ये देसी दवाई बनाते हैं, इसको जो है डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। इनके नॉलेज है इनके पास कौन से प्लांट्स की वजह से मलेरिया नहीं होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट्स कौन कौन से हैं, इनको पता है कौन सी डाइटरी टैबूज हैं, कौन से फूड नहीं खाने हैं, है ना। इनको हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी इनके जो होते हैं अपने, वो भी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो सीजनल मोबिलिटी क्या होती है, जब जैसे पेस्टलिस्ट कम्युनिटी जब मूव करती हैं तो इनमें जो है बीमारियां, डिजीज ट्रांसमिशन जो है वो कम होती हैं। ओके, ये आपने कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम हीलर्स का, जो वहाँ के हीलर्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, उनका क्या रोल है। ओके, ओके, ये आपने देखना है। ओके, बायोपायरेसी ना हो, लॉस ऑफ नॉलेज जो हो रही है ना, कल्चरेशन के साथ इनकी जो नॉलेज है वो लॉस हो रही है, तो यही चीजें आपने अपने एग्जाम्स में कोड करनी है। क्योंकि नॉलेज इनके पास तो बहुत है, लेकिन जब ये दूसरे कल्चर ग्रुप्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इनकी लैंग्वेज खत्म हो रही है, इनकी रिटन फॉर्म में नहीं है। तो ये ओरली ही मेडिसिनल नॉलेज जो है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करते हैं, बट गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इनके पास ट्रेडिशनल प्लांट्स की इनके पास नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, इनके अपने हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। जब ये मूव करते हैं दूसरे से दूसरी जगह में, तो डिसीज ट्रांसमिशन से खतरे, क्योंकि मोबाइल पॉपुलेशन है तो ड्रीम्स ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होती है। तो आप देखिए, तो जो इन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स की जो नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट्स करने की ज़रूरत है। ओके, तो वैल्यूएबल है प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी केयर के लिए। ओके, तो अब जो है वो कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड डॉक्यूमेंटेशन इनको होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए शेड्यूल ट्राइब्स की इंडिया में। ओके, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, ये एक पॉलिटिकल कैटेगरी भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी भी है। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 में। एक ग्रुप है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लो लैंग्वेज लेवल है, डिस्टिंक्ट लो लिटरेसी है, लो हेल्थ है इनकी, इनका जो है और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट टेरिटरी है इनकी। वो कि हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट आइलैंड्स में रहते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, ये आपने बताना, यही तो चीजें आपने बतानी है, चीजें तोड़ मरोड़ के आपने प्रेजेंट करनी है। और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पे ये करते हैं, आर्टिजनरी करते हैं। तो रीजन्स जो है और इंस्टीट्यूशनल फीचर्स कहाँ कहाँ है, ट्राइबल ग्रुप्स आप देखिए, मैंने बताया साउथ में टोडास है, कोटास है, कुरुम्बास है, इरुला है, तो ये साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं। ओके, तो अब देखिए इरुलास क्या करते हैं, पोट्री करते हैं। ओके, अब देखिए इनमें विलेज काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, जूम कल्टीवेशन से करते हैं। ओके, उन आपको ये पढ़ना होगा। ओके, अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में बीएस गुहा ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कार्वे ने क्या कंट्रीब्यूट किया, एसआर के चोपड़ा ने क्या कंट्रीब्यूट किया। ओके, ये आपको पता होगा, होना चाहिए गाइस, तभी तो आपको चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी, आप उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हो गाइस। तो आप देखिए कि क्या है, आज मैं ट्रैक सूट में आपको पढ़ाऊंगा, माई कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई। जस्ट स्माइल के साथ सबसे बात करें, चाहे कोई भी हो, कोई जितना मर्जी नफरत करे, नफरत नहीं करनी, बट हैप्पीनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, खुश रह के आप अचीव कर सकते हो। आपको खुश रहना है, आपके अंदर, आपको अगर नालायक बनाना है तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर दो, जहर भर दो, तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बी एस गुहा की क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, रेशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दी, है ना। वो रेशियल क्लासिफिकेशन का जरा मेरे को बताइए, कौन कौन से रेशियल ग्रुप्स के बारे में इन्होंने बताया। एच एस रिस्ले आए, बी एस ओके, इरावटी कार्वे ने क्या किया, किनशिप स्टडीज की, कास्ट के बारे में स्टडी किया। एसआर के चोपड़ा ने क्या किया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया,
है ना। तो आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज की, पॉपुलेशन की स्टडीज की, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी को डिस्कवरी किया। तो आप देखिए, किसी ने सोशल सबमिल में काम किया, किसी ने बायोलॉजिकल सबमिल में काम किया। ओके, कल्चर और हिस्ट्री की सिंथेसिस करने की जरूरत है। ठीक है, टोडा टोडा कोटा, कुरुम्बा, इरुला, ये ट्राइब्स, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये लैंड लॉस की वजह से इनके बफेलो बहुत कम हो गए हैं। कोटा के क्या करते हैं, आर्टिजनल डिक्लाइन हो गया है। तो इरुला जो है वेज लेबर में है, शुगर केन वर्क में है। ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन की बात करें तो जो टोडास जो थे वो क्या करते थे, मिल्क बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। तो और कोटास क्या करते थे, वो पोट्रीज में काम करते थे, आर्टिजन थे, सेरिमोनियल ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। ओके, रूलास क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। ओके, टोडा कोटा पोटिंग मेडिकल स्किल्स, कुरुम्बा एग्रीकल्चर करते थे, गैदरिंग करते थे, इरुला स्टोन कटिंग करते थे, है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेजिंग करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते थे। तो ये इनका आपस में रिलेशन है, एक दूसरे के साथ ये सामान अपने शेयर करते थे। प्रोडक्शन गुड्स जो बनाते थे वो आपस में शेयर करते थे। जैसे इरूला हो गया, इरूला फॉरेजिंग था तो ये फॉरेस्ट के प्रोड्यूस बनाते थे तो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ शेयर करते थे। तो जो कोटा है वो पॉटरी बनाते थे, है ना, ये बफेलो मिल्क प्रोडक्ट्स इनको सप्लाई करते थे, ये पॉटरी इनको सप्लाई करते थे। कुरुम्बास जो थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, गैदरिंग करते थे। तो आप देखोगे कि किस तरह से एक ट्राइबल ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर करता है, एक ट्राइबल ग्रुप पोल्ट्री बनाता है, एक एग्रीकल्चर ट्राइबल ग्रुप जो है वो पेस्टोरी बफेलो करता है, बफेलो हर्डिंग करता है, पेस्टोरिज्म करता है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी में रहती है। अब जो है वो डिक्लाइन हो गया है। ओके, आप देखोगे कि बी एस गुहा ने क्या स्टडी किया। ठीक है, इसको आप अलग से, आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 में, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आप देखिए, वेरियर एल्विन की बुक है, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन। बी एस गुहा ने रेशियल क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने गॉन्स, भील्स, संथल्स, नागास के ऊपर क्या किया, एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड किया इनको, क्या क्या उनकी डाइवर्सिटी है उसको नोट डाउन किया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया था, फादर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। जो बी एस गुहा हैं वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के फादर माने जाते हैं। इरावटी ने सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में काम किया। और जो दूसरे थे एस आर के चोपड़ा, ये फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इन्होंने स्टडी किया। बी आर चोपड़ा, बी एस के चोपड़ा। तो ये आप देखोगे कि गुहा ने क्या किया, बहुत काम किया गुहा ने। ये इनको कहा क्या जाता है फादर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। कार्वे को ने किया किया इन्होंने किनशिप स्टडी की, सोशियो कल्चरल फील्ड में किनशिप स्टडी की। जो चोपड़ा थे उन्होंने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स स्टडी किया, इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी किया, इन्होंने ट्राइबल जेनेटिक्स को स्टडी किया। तो ये आप इनको देखिए। ओके, तो ये आप देखिए, क्वेश्चंस की बात करें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 23। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से क्या प्रॉब्लम हुई है, फॉरेस्ट पॉलिसी, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट एंड शेड्यूल्ड एरिया ब्रीफ कंबाइंड। तो कॉलोनियल के जो फॉरेस्ट लॉज थे उन्होंने क्या किया, इनके फॉरेस्ट ही छीन लिए ट्राइबल ग्रुप 1878 के बाद जो आए। पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आए, इनको थोड़ा थोड़ा इनको फॉरेस्ट के राइट्स के दिए गए। ओके,
तो अब देखा जाए कि शेड्यूल्ड एरिया फॉरेस्ट पॉलिसी से क्या हुआ, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, इनको एक्सक्लूड करके रखा गया। अब ये है कि ट्राइबल की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है, कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्राइबल काउंसिल्स हैं, ऑटोनॉमी है। तो क्लाइमेट चेंज के बाद क्या हो रहा है, अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ये गर्मी में तड़प रहे हैं, ये ठंड में मर रहे हैं, ये अब देखा जाए कि इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। यस, इनके लिए भी फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लमें बढ़ रही है। ओके, तो आप देखिए कि इससे एक्सट्रीम हेल्थ रिस्क्स इनको हो रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, इनकम लॉस इनकी हो रही है क्लाइमेट चेंज से। ओके, तो ट्रेडिशनल नॉलेज इनकी जा रही है। ओके, तो जो है, तो आप देखिए इनके क्रॉपिंग, इनके जो पैटर्न्स हैं एग्रीकल्चर के, वो चेंज हो रहे हैं। क्रॉपिंग में इंक्रीज्ड माइग्रेशंस हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट जूम शॉर्ट फैलो पीरियड्स इन द क्लाइमेट स्ट्रेस। तो ये आपने पढ़ना है, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी क्या दिक्कतें आई, क्या काम किया। 1878 का आपने जिक्र कर लेना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का आपने जिक्र कर लेना है, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल का जिक्र आपने कर लेना है, क्लाइमेट चेंज का जिक्र आपने कर लेना है कि ट्राइबल सर्वाइवल और कस्टोडियनशिप की बात करें तो अब ये बेसिकली हाई जाए कि ट्राइबल्स क्या हैं, तो फॉरेस्ट में ये लोग रहते हैं। तो अब डिफॉरेस्टेशन से इनकी इनकम लॉस हो रही है, ये माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है। अब देखोगे कि हेल्थ रिस्क्स इनमें बढ़ रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न इनका जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये ऑक्यूपेशंस जो है चेंज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस अपने जो है वो चेंज कर रहे हैं, कल्चरल लॉस इनका हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हेल्थ का रिस्क इनमें बढ़ रहा है। इनमें जो है क्रॉपिंग, अब जो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, है ना, ये बड़े इनमें चीजें जो है वो बदलाव इनमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आप देखिए कि जो फादर थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया में, तो इन्होंने 1931 में जो है वो रेशियल क्लासिफिकेशन दी, जैसे जैसे नेग्रिटो नेग्रिटो जो है इन्होंने दिया, प्रोटो एस्ट्रोनॉइड, मंगोलॉइड, ड्राविडियन, मेडिटेरेनियन, ब्राची, सेफल्स, नॉर्डिक्स, ये जो रेशियल ग्रुप्स जो थे, ये किसने दिए थे, ये दिए थे बीएस गुहा ने। जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया संथल्स का, संथल्स का, गॉन्ड्स का, बिल्स का, नागास का। ओके, तो आप देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, फोर डिविजन्स जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्टोरी, सोशल और मटेरियल कल्चर स्टडीज की, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोर सब फील्ड्स। ओके, एंथ्रोपोमेट्री एंड सीरोलॉजिकल स्टडीज की इन्होंने, ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी स्टडी की। ओके, रिफ्यूजीज के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो आप देखें इरावटी कार्वे ने जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, कास्ट के ऊपर स्टडी की, ट्राइब्स के ऊपर स्टडी की, किनशिप्स के ऊपर स्टडी किया, एथनिसिटी के ऊपर स्टडी किया इसने। तो किनशिप एंड किनशिप ऑथर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये बुक की, तो इंडियन किन्स को डिवाइड किया इसने डिफरेंट टाइप्स में, नॉर्दर्न में, सेंट्रल में, साउदर्न में, ईस्टर्न में। ओके, तो किन्स को उसने क्लासिफिकेटरी किनशिप दी, किसने, ये इसी ने, इरावटी कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो है वो ऑथर की बुक, और बताया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के किन्स ग्रुप कैसे होते हैं, साउथ के किन ग्रुप्स कैसे होते हैं, सेंट्रल के किन ग्रुप्स कैसे होते हैं, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न के किन ग्रुप्स कैसे होते हैं। ओके, तो ट्राइब्स की स्टडीज की, ठीक है, उनके मैरिज रूल्स को स्टडी किया, क्लैंस को स्टडी किया, है ना, पोलियंड्री को स्टडी किया, एक्सोगेमी को स्टडी किया।
तो आप देखिए ट्रेनर अंडर एच एस रिस्ले, ये ट्रेनर थी। एस आर के चोपड़ा ये की इन्होंने क्या जेनेटिक स्टडीज की, बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडीज की। टोडास इरुलास भिल्स, नागास, जरावास, डर्मोटाइग्राफिक्स, ब्लड ग्रुप्स, सीरोलॉजी, पॉपुलेशन मार्कर्स। तो ठीक है, ये स्टडी की इन्होंने। मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, माल न्यूट्रिशन को स्टडी किया, ब्लड प्रेशर वेरिएशंस को स्टडी किया, एंडेमिक डिसीजेस को स्टडी किया, एनीमिया को स्टडी किया। तो एस आर के चोपड़ा की बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, की फिगर है ये फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में और ट्राइबल बायोलॉजी में। ये की फिगर्स हैं भाई, इजाद करना पड़ेगा आपको। तो मित्रों, चोपड़ा ने और इरावटी कार्वे ने और बी एस गुहा ने बहुत कंट्रीब्यूशन की है। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में किनशिप को स्टडीज किया, ट्राइब्स को स्टडी किया, मैरिज सिस्टम को स्टडी किया, क्लैंस की स्टडी की, टोडास, कोटास, नागास के ऊपर स्टडीज की। फिर उसके बाद इन्होंने स्टडीज की, ब्लड ब्लड ग्रुप्स वेरिएशन स्टडी की, इन्होंने ब्लड प्रेशर्स वेरिएबिलिटी की स्टडी की। ये पाइनियर थे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के। ओके, और जेनेटिक्स के भी पाइनियर थे ये। तो बी एस गुहा फाउंडर थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया में, आपको याद रखना है। तो ये इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा किया स्टडी, इन्होंने कास्ट की स्टडीज की, इन्होंने ये स्टडी किया कि कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स को, ये बताया। इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को, वेरिएबिलिटी को स्टडी किया, इन्होंने बड़ी सारी चीजें अंडरस्टैंड की, एनालाइज की गाइस। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे बस। इसके साथ ही मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा PKQs के ऊपर। अब एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर। चैनल को लाइक अगर नहीं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।